We are doing chapter National Movement. In this, you have read about non-cooperation movement, Satyagraha movement, and why Gandhiji called back non-cooperation movement. Non-cooperation movement was called back by Mahatma Gandhi on 5th Feb 1922. What happened? There was violent incident held at Chori Chora village in Uttar Pradesh. Now listen carefully. Non-cooperation movement was called back by Mahatma Gandhi on 5th Feb. As you know, non-cooperation movement was launched by Gandhiji in non-cooperation and Khilafat movement. You know it very well कि गट्ठी launch हुई थी. Non-cooperation and Khilafat movement. Khilafat was launched by Muslims, by Ali brothers, Muhammad Ali and Shaukat Ali, and non-cooperation by Mahatma Gandhi. So this movement was called back by in January 1921 में ये launch हुई थी, and this movement was called back by गांधी जी on 5th Feb 1922. ऐसा क्या हुआ, क्यों गांधी जी को ये movement वापस लेनी पड़ी? As you know, the base of this movement was non-violence, as Gandhi ji believed in non-violence, but violent incident occurred at चोरी चोरा. चोरी चोरा एक village था उत्तर प्रदेश में, अभी भी है चोरी चोरा village in उत्तर प्रदेश. Violent incident took place at Chori Chora village in Uttar Pradesh. Here people turned violent. यहाँ के लोग जो थे वो violent हो गए थे and they attacked the police station and set it on fire. So in this incident, 22 policemen lost their life. How many policemen? 22 policemen lost their life. आप एक चीज नोट करो, 22. Here be 22 policemen lost their life in this incident. So Gandhiji was shocked as he was against violence and he decided to call back his non-cooperation movement. अब non-cooperation movement उन्होंने वापस ले ली. And in 1922, Swaraj Party was formed. Which party? Swaraj Party. ये एक हिंदी का word है स्व, फिर राज. स्व means self. राज मीन्स रूल, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? सेल्फ रूल. सेल्फ रूल मीनिंग ऑफ स्वराज सेल्फ रूल, अपना राज. तो in 1922 Swaraj Party was formed. Which party? Swaraj Party was formed. In which year this party was formed? In 1922 by किसने बनाई? C.R. Das, चित्तरंजन दास and Motilal Nehru. Motilal Nehru, father of Pandit Jawaharlal Nehru. Swaraj Party was formed in 1922 by Swaraj का पहले मीनिंग आना चाहिए, स्वराज सेल्फ रूल. It was formed by C.R. Das, Chittaranjan Das and Motilal Nehru. This party was formed because some of the Congress leaders were against Mahatma Gandhi, as they were on the view that Gandhiji launched movement and then called back. So they didn't want to take part in the movements of Mahatma Gandhi. They wanted to take part in elections because they were on the view by taking part in elections, they would come in power and they would force British to introduce some reforms in Indian administration. No, they didn't want to take part in the movements launched by Mahatma Gandhi. They were fed up with the movements of Mahatma Gandhi. So they wanted to take part in elections. इनको था कि हम इलेक्शंस में पार्ट लेंगे और अपने आप पावर में आएंगे और ब्रिटिश को फोर्स करेंगे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स करो. So that's why they didn't want to take part in the movements of Mahatma Gandhi. So they formed Swaraj Party. But still, some young leaders like Pandit Nehru, Subhash Chandra Bose, they were with Mahatma Gandhi. Though father was not in the favor of Mahatma Gandhi, Motilal Nehru ने ये पार्टी बनाई, Swaraj Party. But Pandit Nehru, he was with Mahatma Gandhi. Pandit Nehru अभी भी महात्मा गांधी के साथ थे. तो you have to learn these two, Swaraj Party and Chori Chora incident. Next, अब आपको एक और टू डेवलपमेंट्स इस पीरियड में याद करनी है. इन द मिड ऑफ 1920 और दो पार्टीज बनी थी दैट वर, अब आपको याद करना है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी
and the Communist Party of India, RSS, Hindu organization and Communist Party of India. It was also formed in the mid of 1920. And then revolutionary nationalist Bhagat Singh, he was also active in this period. Bhagat Singh was also active in this period. Listen again, हम बात कर रहे हैं 1920, जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस लीडर्स को कन्विंस किया था, बट मूवमेंट लॉन्च हुई थी 1921 में. अब 1920 में क्या क्या हुआ? आरएसएस बनी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना, और ये एक आप कह सकते हो कि कम्युनिस्ट पार्टी है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस एंड कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. एंड देन फिर आप कह सकते हो भगत सिंह भी उन दिनों काफी पॉपुलर थे, ठीक है, भगत सिंह उन दिनों काफी एक्टिव थे जब ये मूवमेंट सब कुछ लॉन्च हो रहा था. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब वापस ली तो 5 Feb 1922 चोरी चोरा में, चोरी चोरा village in Uttar Pradesh, where people turned violent, attacked the police station, set it on fire. So due to the violent incident as occurred in चोरी चोरा, 22 policemen lost their life and 1922 में ही ये मूवमेंट वापस हुई है. तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस लिया, ठीक है. अब स्वराज पार्टी, स्वराज मैंने पहले ही बताया, स्व मीन्स अपना, सेल्फ, सेल्फ रूल, स्वराज सेल्फ रूल, राज का मतलब रूल. तो स्वराज पार्टी बनी, सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने बनाई. अब ये पार्टी क्यों बनी? अब यहाँ पे आपने बताना है कि सम ऑफ द कांग्रेस लीडर्स दे वर फेड अप विद द मूवमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी. नो, दे वांटेड टू टेक पार्ट इन इलेक्शंस and they were on the view that by taking part in elections they would come to power and they would force British to introduce reforms in Indian administration. But still ये पार्टी किसने बनाई? सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू. मोतीलाल नेहरू कौन थे? फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो स्टिल यंग लीडर्स, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, दे वर विद महात्मा गांधी. अभी हमने बोला कि मोतीलाल नेहरू ने ये पार्टी बनाई, मीन्स फादर गांधी जी की फेवर में नहीं है, बट बेटा पंडित नेहरू ही वाज विद महात्मा गांधी. और इसी टाइम पीरियड में एक बनी आरएसएस, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी, और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आरएसएस बनी मिड ऑफ 1920. एंड इन दोज डेज भगत सिंह वाज आल्सो एक्टिव, भगत सिंह भी एक्टिव थे उन दिनों. तो अब 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज मांग लिया. In 1929, कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज. अभी तो वो स्वराज मांग रहे हैं, ठीक है, बट इन दिसंबर 1929 a session was held at लाहौर. कहाँ पे हुआ? लाहौर में कांग्रेस का एक सेशन हुआ, known as लाहौर सेशन. कब हुआ? दिसंबर 1929. अब this session was held under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru. Learn here, in December 1929, there was session of Congress at Lahore. लाहौर में कांग्रेस का एक सेशन हुआ. अब यहाँ पे लीडर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू. बच्चे मोस्टली महात्मा गांधी लिख देते हैं, बट नहीं, आपने यहाँ पे लिखना है. This session was held, Lahore session was held under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru. And for the first time कांग्रेस demanded पूर्ण स्वराज. अब कांग्रेस ने क्या मांगा? पूर्ण स्वराज. इसका मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस. अब कांग्रेस ने कहा हमें पूर्ण आजादी चाहिए, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस. नो, कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज. अब कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम क्या मांगा? पूर्ण स्वराज. पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज डिमांडेड बाय कांग्रेस. अब पंडित नेहरू की लीडरशिप में हुआ था. हियर दे पुट फॉरवर्ड, इसकी 4 प्रोविजंस थी. दिस सेशन हैड 4 प्रोविजंस. आई थिंक नॉट गिवन इन योर बुक. तो मैं आपको बता देती हूँ, आपकी बुक में सिर्फ एक ही दी हुई है, बट आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल. आपकी बुक में सिर्फ एक ही प्रोविजन दी हुई है, बट लिसन ऑल, लिसन केयरफुली. In December 1929, there was session of Congress at Lahore under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru. And in this, for the first time, Congress demanded पूर्ण स्वराज. ये first provision है. Second provision थी 26 January 1930.
would be celebrated as Independence Day in the whole of India. आपकी बुक में ये भी दी हुई है, ठीक है। 26 जनवरी 1930 would be celebrated as क्या, Independence Day in the whole of India. Two provisions आपको आ गई. For the first time Congress demanded पूर्ण स्वराज, and 26 जनवरी 1930 would be पंडित नेहरू ने ये प्लेज ली थी, कसम खाई थी कि 26 जनवरी 1930 would be celebrated as Independence Day in the whole of India. क्योंकि दिसंबर 1929 में सेशन हुआ तो आगे जनवरी आना ना, तो उन्होंने कहा 26 जनवरी 1930 को हम आजादी लेके रहेंगे, आजादी दिवस मनाएंगे पूरे इंडिया में, बट वो पूरा नहीं ना हुआ था, तो वही हमारा बाद में रिपब्लिक डे बना। हमारा तभी कॉन्स्टिट्यूशन 2 मंथ्स वेट पे रखा था। यू हैव रेड इन चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन, आई हैव टोल्ड यू कि 2 मंथ्स के लिए वेट की थी, एंड 26 जनवरी इसी डेट को उन्होंने ऑनर किया था, जो यहाँ पे पंडित नेहरू ने एज ए प्लेज ली थी, ठीक है। 2 प्रोविजंस आ गई। अब थर्ड प्रोविजन, कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट करने का डिसीजन लिया। ब्रिटिश ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी और कांग्रेस ने यहाँ पे डिसीजन लिया था दैट दे वुड बाइकआउट दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दे वुड नॉट अटेंड इट, इट्स नॉट गिवन इन योर बुक। एंड फोर्थ प्रोविजन थी कि गांधी जी की जो डिमांड्स थी ना, कांग्रेस ने कहा कि गांधी जी की डिमांड्स को पूरा किया जाए। अगर ब्रिटिश गांधी जी की डिमांड्स को पूरा नहीं करेंगे तो कांग्रेस वुड लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। तो ये 4 प्रोविजंस थी, एज नॉट गिवन इन योर बुक, सो नो नीड टू, मैंने वैसे ही बताई हैं। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, इन दिसंबर 1929 देयर वाज सेशन एट लाहौर अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू for the first time. In this session, for the first time, Congress demanded Pooran Swaraj, complete independence, and Pandit Nehru pledged that 26 January 1930 would be celebrated as Independence Day in the whole of India. ठीक है। अब आ गया दांडी मार्च। आपकी बुक में वो प्रोविजंस नहीं दी हुई कि इफ डिमांड्स ऑफ गांधी जी वर नॉट फुलफिल्ड देन कांग्रेस वुड लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इस बीच में जो हुआ मैं आपको एक आउटलाइन में बताती हूँ। गांधी जी ने ना, इट्स नॉट गिवन इन योर बुक, गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखी। लॉर्ड इरविन वाज देन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गांधी जी रोट लेटर टू लॉर्ड इरविन। अब गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखी, क्योंकि 1930 चल आ गया ना। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी रोट लेटर टू लॉर्ड इरविन। इन दैट ही पुट फॉरवर्ड 11 डिमांड्स, आस्क्ड इरविन टू फुलफिल दीज डिमांड्स। बट इरविन ने कहा कि सारी डिमांड्स यूजलेस है, कोई भी पूरी नहीं होनी। तो उसमें गांधी जी ने पहले से ही कहा था इफ डिमांड्स वुड नॉट बी फुलफिल्ड then he would launch civil disobedience movement. गांधी जी ने इरविन को अल्टीमेटम भी दिया था। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी wrote letter to Lord Irwin and in that he put forward his 11 demands. उन्होंने इरविन को लास्ट डेट दी 11th मार्च तक। 11th मार्च तक उन्होंने कहा मेरी 11 की 11 डिमांड्स पूरी कर दो। अब यहाँ पे भी इजी है, 11th मार्च 11 डिमांड्स। उन्होंने कहा मेरी डिमांड्स पूरी करो, बट इरविन ने मना कर दिया। उसने कहा कि सारी डिमांड्स यूजलेस हैं, कोई भी पूरी नहीं होएगी। दैट्स व्हाई ऑन 12th मार्च गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। 12th मार्च 1930 को। अब आपकी बुक में सीधा ही डांडी मार्च दिया हुआ है, तो आपने ऐसे बताना है कि ऑन 12th मार्च, आई थिंक डेट एंड ईयर इज डेट इज आल्सो नॉट गिवन। On 12th March 1930, Gandhi ji launched civil disobedience movement. 12th March 1930 को गांधी जी ने कौन सी मूवमेंट लॉन्च कर दी? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब इसका मीनिंग क्या? मीनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस का, जैसे मैंने बताया, सत्याग्रह का मीनिंग था फाइट फॉर ट्रूथ। नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट का मीनिंग था नॉट टू कोऑपरेट ब्रिटिश। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मीनिंग था डिसओबे ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल्स को तोड़ दो। ठीक है। इसमें गांधी जी ने इंडियंस को कहा था ब्रेक डाउन द लॉस मेड बाय ब्रिटिश। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 12th मार्च 1930 को लॉन्च हुई। इसमें भी गांधी जी ने इंडियंस को कहा ब्रेक डाउन द लॉस मेड बाय ब्रिटिश, बट साथ में एक बात बोली कि आपने वायलेंट नहीं होना, आपने नॉन वायलेंस से सारे काम करने हैं। So this movement was started on 12th March. When he started this movement, he had only 78 volunteers with him. 78 members के साथ ये movement start की थी, जो कि बाद में number of members reached to 2 lakh.
जब तक वो डांडी पहुंचे ना, लोगों ने रास्ते में ज्वाइन किया तो नंबर ऑफ मेंबर्स 2 लाख हो चुका था, जो सिर्फ 78 थे। अब इसमें एक वुमेन मेंबर भी थी जिसने गांधी जी को बिगिनिंग में ही साथ दिया, दैट वाज सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने फर्स्ट इस मूवमेंट में बिगिनिंग में ही पार्ट लिया था जब उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की। अब इस मूवमेंट में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी कोस्ट जाना था। कहाँ? साबरमती आश्रम से दांडी कोस्ट। एंड डिस्टेंस जो था दैट वाज 240 माइल्स। इन दिस मोमेंट गांधी जी हैड टू वॉक फ्रॉम, कहाँ से कहाँ जाना था? साबरमती आश्रम टू दांडी कोस्ट। एंड डिस्टेंस कितना था साबरमती से दांडी का? 240 माइल्स। अब गांधी जी डेली वॉक्ड 10 माइल्स। ही वॉक्ड डेली 10 माइल्स, सिर्फ 10 मील चलते एंड स्टॉप्ड, टुक रेस्ट, गेव स्पीचेस। 10 मील चल के वो रेस्ट करते, स्पीचेस देते। वुमेन विद देयर किड्स केम आउट ऑफ देयर हाउसेस टू लिसन टू द स्पीचेस ऑफ महात्मा गांधी, एंड वुमेन got so impressed that women joined this Dandi march with their kids. तभी मैंने बोला ना, जो मूवमेंट पहले 78 वॉलंटियर्स के साथ स्टार्ट हुई, रास्ते में लोगों ने इस मूवमेंट को बढ़ चढ़ के ज्वाइन किया एंड दे रीच दांडी कोस्ट ऑन 6 अप्रैल 1930। आप ना इसको जब अपने आप करोगे ना, एज दे वॉक्ड 10 माइल्स डेली, डिस्टेंस वाज 240 माइल्स, एंड दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड ऑन 12 मार्च 1930। तो आप जब काउंट करोगे अपने आप इसको काउंट करना, गांधी जी डेली वॉक्ड 10 माइल्स एंड ऑन 6 अप्रैल 1930 he reached Dandi coast. This movement was started on 12th March 1930 and Gandhi ji had to walk from Sabarmati ashram to Dandi coast. Distance कितना था? 240 miles. Daily Gandhi ji walked 10 miles. तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे ना, आपके पास अपने आप डेट आएगी 6 अप्रैल। He reached Dandi coast on 6 अप्रैल 1930. 1936 अप्रैल को गांधी जी दांडी कोस्ट पहुंच गए एंड ही ब्रोक डाउन द सॉल्ट लॉ। तो वहां पे पहुंच के उन्होंने सबसे पहले सॉल्ट लॉ को तोड़ा बाय बॉइलिंग सी वाटर। सी वाटर को बॉइल किया एंड ब्रेक डाउन द सॉल्ट लॉ। अब गांधी जी ने जब सॉल्ट लॉ को तोड़ा तो आफ्टर सीइंग गांधी जी, पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्टार्टेड ब्रेकिंग लॉस मेड बाय ब्रिटिश। गांधी जी को देख के दूसरे पार्ट में भी लोगों ने ब्रिटिश लॉस को तोड़ा। तो ब्रिटिश स्टार्टेड अरेस्टिंग पीपल, ब्रिटिश ने लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया एंड नियर अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड बाय ब्रिटिश। अब सोचो 1 लाख लोग जेलों में थे एंड दे वर नोन एज पॉलिटिकल प्रिजनर्स। क्या कहा गया उन्हें? पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो नियर अबाउट 1 लाख पीपल वर इन जेल एंड दे वर नोन एज पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो क्यों ये लोग जेलों में थे? क्योंकि दे ब्रोक डाउन द लॉस मेड बाय ब्रिटिश। तो पेशावर में ना अब्दुल गफर खान ने ब्रिटिश लॉ को तोड़ा। इन पेशावर अब्दुल गफर खान, जिसको कि हम कहते हैं फ्रंटियर गांधी, अब्दुल गफर खान पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी, he broke down the laws made by the British and he was also arrested. पंडित नेहरू, अब्दुल गफर खान, they were in jail. आपकी बुक में सिर्फ इतना ही बताया हुआ है कि दांडी पहुंचे, 240 माइल्स चलना था एंड आफ्टर बॉइलिंग सी वाटर कलेक्टेड सॉल्ट फ्रॉम द सी एंड इस वे से गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ा। तो आपकी बुक में सिर्फ इतना ही बताया हुआ है, ठीक है। नियर अबाउट आपकी बुक में बताया हुआ कि बहुत से लोग जेलों में थे। मैंने बिगनिंग में बताया कि 1 लाख पीपल वर इन जेल एंड ब्रिटिश जो थे दे स्टार्टेड गिविंग स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स टू द पीपल हु जॉइंड दिस मार्च। अब ब्रिटिश ने लोगों को पनिशमेंट देनी शुरू कर दी। अब और क्या हुआ? कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल बोर फ्रूट व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 प्रिस्क्राइब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया एंड इसमें उन्होंने क्या अनाउंस किया? गवर्नमेंट अनाउंस्ड इलेक्शंस टू बी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स इन 1937। 1935 में ब्रिटिश ने एक एक्ट भेजा इंडिया में, इंडिया एक्ट। उसमें अनाउंस किया गया, उस एक्ट के अकॉर्डिंग अनाउंस किया गया कि 1937 देयर वुड बी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शंस। कांग्रेस ने इन इलेक्शंस में 11 सीट्स में से 7 सीट्स जीत ली। कांग्रेस
formed government in 7 provinces out of 11. 11 provinces में जो इलेक्शंस हुए कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली? 7 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई इन 7 provinces. In September 1939, after 2 years of Congress rule in the provinces, the Second World War broke out. अब कांग्रेस अभी 2 साल भी नहीं रूल किए थे इन 7 प्रोविंसेस, तो क्या स्टार्ट हो गई? सेकेंड वर्ल्ड वार. एज यू नो, फर्स्ट वर्ल्ड वार के आपको ईयर्स मैंने लर्न करवाए थे 1914 to 18. अब सेकेंड वर्ल्ड वार के आप याद रखो 1939 to 45. लर्न द ईयर्स. फर्स्ट वर्ल्ड वार के आपको करवाए थे 1914 to 1918. अब सेकेंड वर्ल्ड वार के आप ईयर्स लर्न करोगे 1939 to 1945. अब 1935 में ब्रिटिश ने अनाउंस किए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शंस होंगे, लेजिस्लेचर्स के लिए इलेक्शन होंगे. एंड इन 1937 इलेक्शंस वर कंडक्टेड एंड फ्रॉम 11 प्रोविंसेस इन 7 कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट. अभी कांग्रेस ने कहते 2 years ही रूल किया था. इन 1939 देयर वाज सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई. एंड आपको पता ही है कि फिर ये अलाइड एंड एक्सेस पावर्स में हुई. तो एक साइड ये ब्रिटेन था, इसमें कौन कौन थे? यूके, फ्रांस, रशिया, यूएसए. तो ये कंट्रीज एक साइड थी. दूसरी साइड जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सारी एक साइड थी कंट्रीज. टर्की, ये सब एक साइड थी. अब क्योंकि हिटलर जो था ना, वो उन दिनों इस बात के लिए फेमस था कि हिटलर बहुत क्रूअल है. हिटलर पूरे वर्ल्ड में ये बात स्प्रेड हुई थी कि हिटलर बहुत क्रूअल है. और वैसे भी हिटलर आप 9th में जाके डिटेल में पढ़ोगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि हिटलर जर्मनी में कैसे नाजिज्म लेके आया, कैसे उसने जूस को स्ट्रिक्ट उनके साथ कैसा उसका कैसे उसने उनको टॉर्चर किया, जूस को, जिप्सिस को, ब्लैक्स को. तो पूरे वर्ल्ड में लोगों को पता था कि हिटलर जो है वो क्रूअल है. तो इस वजह से लोग, इंडिया वालों ने ब्रिटेन की ही हेल्प की, बिकॉज इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश. एंड ब्रिटिश ने इंडियंस को फिर फोर्स किया टू हेल्प देम इन दिस वार. और साथ में कहा कि आफ्टर वार दे वुड गिव फ्रीडम टू इंडियंस. तो ऐसे वाली बात पहले वार से कह दी गई कि आफ्टर वार ब्रिटिश वुड गिव फ्रीडम टू इंडियंस, इंडिपेंडेंस टू इंडियन, दे वुड ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इंडियंस. तो इंडियंस ने इस वार में ब्रिटिश की हेल्प की. बट आफ्टर वार ब्रिटिश रिफ्यूज्ड. ब्रिटिश ने मना कर दिया कि उन्होंने कोई भी डिमांड पूरी नहीं करनी. और कांग्रेस मिनिस्टर्स जो थे उन्होंने रिजाइन किए और प्रोटेस्ट कर दिए. जिन प्रोविंसेस में कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, कांग्रेस रिजाइंड एंड प्रोटेस्ट. देखो, ब्रिटिश ने फिर इंडियन से प्रॉमिस किया कि हेल्प देम इन द वार. आफ्टर वार ब्रिटिश वुड ग्रांट फ्रीडम टू इंडियंस, कि आफ्टर वार वो इनको इंडिया को फ्रीडम दे देंगे. तो इंडियंस participated in this war, helped the British in this war, but after war British refused to fulfill any kind of promise. उन्होंने कहा वो ऐसा कोई भी प्रॉमिस पूरा नहीं करेंगे. तो कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किए एंड रिजाइंड. उन्होंने रिजाइन कर दिया जो उन्होंने 7 प्रोविंसेस में अपनी गवर्नमेंट बनाई थी. दे रिजाइंड एंड प्रोटेस्टेड. सो दिस इज, अभी एक बार फिर रीकैप. अभी आज इतना ही करते हैं. क्विट इंडिया मूवमेंट में अभी नहीं कराऊंगी, अभी आज इतना ही करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे आई हैव स्टार्टेड विद चोरी चोरा इंसिडेंट 5 Feb 1922. इसके साथ कौन सी मूवमेंट कॉल बैक हुई? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. चोरी चोरा विलेज है, उत्तर प्रदेश में है. यहाँ पे लोग वायलेंट हुए, बर्न द पुलिस स्टेशन सेट, एंड हियर इन दिस इंसिडेंट 22 पुलिसमैन लॉस्ट देयर लाइफ. तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस लिया. 1922 में स्वराज पार्टी बनी. स्वराज का मीनिंग है स्वराज, सेल्फ रूल. और ये किसने बनाई? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू. क्यों बनी? Because these leaders, CR Das and Motilal Nehru, they were fed up with the movements of Mahatma Gandhi. No, they wanted to take part in elections. They were on the view that by taking part in elections, they would come in power and force British to introduce some reforms in Indian administration. तो फिर दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ. किसकी लीडरशिप में हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में हुआ. एंड यहाँ पे कांग्रेस ने क्या मांगा? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस. अब यहाँ पे कांग्रेस ने एक और डिक्लेरेशन की. पंडित नेहरू ने प्लेज ली कि 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे इन द होल ऑफ इंडिया. अब ये प्लेज तो ली. क्या आपको तो पता ही है, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947. तो ये बात तो ऐसी की ऐसी रह गई कि 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे इन द होल ऑफ इंडिया. पूरी नहीं हुई.
तो ये डे हमारा क्या बन गया, रिपब्लिक डे। इसी डे को ऑनर किया गया, बाद में हमारे फ्रेमर्स ने इस डे को बना दिया कॉन्स्टिट्यूशनल डे, या फिर आप कहोगे रिपब्लिक डे। अब यहाँ पे एक और प्रोविजन थी कि अगर गांधी जी की डिमांड्स पूरी ना हुई तो कांग्रेस वुड लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब गांधी जी ने इरविन को अपनी डिमांड्स भेजी और साथ में कहा 11 मार्च तक मेरी डिमांड्स पूरी कर दो। इरविन रिफ्यूज्ड, उसने कहा सारी डिमांड्स यूजलेस हैं, वुड नॉट बी फुलफिल्ड। देन ऑन 12 मार्च 1930 civil disobedience movement was launched by Mahatma Gandhi and the meaning of civil disobey British rule। अब ये मूवमेंट स्टार्ट हो गई। अब इसमें आप बताओगे कि जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई तो 78 वॉलंटियर्स, लेटर नंबर ऑफ मेंबर्स रीच टू 2 लाख। साबरमती आश्रम से डांडी कोस जाना था, डिस्टेंस वाज 240 माइल्स, डेली वॉक्ड 10 माइल्स, वेयरएवर गांधी जी स्टॉप्ड, gave speeches। Women with their kids came out of their houses to listen to the speeches of Mahatma Gandhi। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स रीच टू 2 लाख। कैसे वो 78 थे। एंड 6 अप्रैल 1930 को वो कहाँ पहुंच गए, डांडी कोस्ट। एंड वहां पहुंच के उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा। After seeing Gandhiji, people in different parts of India broke down the laws. They were arrested. Near about 1 lakh people were in jail। अब एक बात मैं वैसे आपकी नॉलेज के लिए पूछती हूँ, गांधी जी ने सॉल्ट ही क्यों सिलेक्ट किया? व्हाई गांधी जी सिलेक्टेड सॉल्ट? बिकॉज सॉल्ट जो एक ऐसी कमोडिटी थी दैट वाज यूज्ड इन ईच एंड एवरी किचन, गरीब अमीर हर एक के किचन में सॉल्ट यूज होता था। And by taking this small commodity, Gandhiji wanted to challenge the British authority। ब्रिटिश की अथॉरिटी को चैलेंज करना चाहते थे इस एक स्मॉल सी कमोडिटी के साथ। वैसे भी उनको था कि सॉल्ट जो है रिच पुअर हर एक के किचन में यूज होता है और इस पे टैक्स नहीं होना चाहिए, इट शुड बी टैक्स फ्री, क्योंकि ये रिच और पुअर हर कोई इसको यूज करता है और इस पे टैक्स नहीं होना चाहिए। एंड बाय टेकिंग दिस स्मॉल कमोडिटी वांटेड टू चैलेंज द ब्रिटिश अथॉरिटी। तो इस वजह से उन्होंने सॉल्ट को ही सिलेक्ट